Okay. One second. I need to connect to YouTube. Should have done that before. Sorry. Oh no, it's asking for a verification from Pradeep ji. Oh. Vimal, make me the co-host. But it first let me the YouTube it asking me a verification from Pradeep ji. I should call Pradeep ji, no? You make me the co-host, I'll try to do it. Okay. Yeah, I did it. Yeah, done now. Okay. Stop the recording for a second. Welcome everybody to this Friday evening program. Before beginning, let's all join together in the universal invocation. Please join me. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who knows himself as one with thee know he is also one with every other. So, welcome back, everybody. Let me quickly introduce today's speaker, Shyam Singh Gautam. He is a senior theosophist, member since 1974. He's been a member of the Adyar Lodge in Chennai, the Chauhan Lodge in Kanpur, and Mumbai Blavatsky Lodge. His career is of he's been a senior director at the Industrial Hygiene and in charge of major safety division and environmental engineering. He has worked in the Central Labor Institute and also in regional labor institutes in Nagpur and in Mumbai and Kanpur. He has more than 300 technical reports to his name. He's still working as an advisor to industries for safety and hazard training. So he is not only proficient in his career and extremely expert at it, he has a lot of training from various countries. He also appears to be an ardent theosophist. So welcome, sir. Today you will be taking up letter number 101, Mahatma letter 57. So please go ahead, sir. Now you can share the PPT. Thank you, ma'am. This letter I would like to tell you first in the beginning itself. Good morning, everybody. First, good morning, everybody. I'm not able to see who are all the people present, but all are learned people. And one thing I want to tell in the beginning that this particular letter is more about the few gentlemen who were working against the masters and the Theosophical Society. And then to name them, one is the C.C. Massey and other is Mr. O.H. Hume. And this whole letter is only about that, written to Mr. Sinnett. And Sinnett is his friend not only in this life, but for a long time in the many births. And he didn't want to disappoint him. He knew that he is just at the verge of the chelaship. And so he was a bit afraid. Master was a bit afraid that if he knows the truths about it, then perhaps he may favor his friend and then he may get away from the teachings. So he first collected the evidences and then he came forward to write this letter. I would like to read it.
Excuse me, sir. There is some problem. Why the first slide is not working? Sir, what happened? Just a minute, just a minute. There is some problem. Would you like me to share the slides? Yes, sir, now it's visible. Who's sharing? I think, yes, sir, it's visible, sir. Go So ahead. now it has started. He writes, my dear friend, मेरे दोस्त, मैं एक ऐसे विषय पर जाने का प्रयास कर रहा हूं जिसे मैंने उद्देश्य पूर्वक अनेक महीनों से टाला है. If there are many people who do not understand Hindi, then please stop me at any point and I would like to explain it further. मैं एक ऐसे विषय पर जाने का प्रयास कर रहा हूं जिसे मैंने उद्देश्य पूर्वक अनेक महीनों से टाला है. इससे क्लियर इंडिकेट होता है कि ही एंड आगे कहते हैं अगले सेंटेंस में, जब तक मुझे ऐसे सबूत नहीं मिल गए जिससे कि यह आपकी दृष्टि से भी सारयुक्त लगे. एक्चुअली he wanted to tell about something about Mr. Hume, but he didn't divulge it till he got the enough documentary proof to give him the evidences. जैसा कि आप जानते हैं, मैं सदा एक ही दिशा में विचार नहीं करता और न ऐसा कोई सत्य बताता हूं जिसका तुम्हारे दृष्टिकोण से कोई वजन न हो. अब ये बताते हैं कि एक ही दिशा में विचार नहीं करता हूं. इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि किसी भी एक चेला से, किसी भी एक मेंबर से या डिसाइपल से वो को टीचिंग्स दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, बट एट द सेम टाइम ही इज डीलिंग विद सो मेनी अदर थिंग्स एंड वो जो है सब कुछ नहीं बताते हैं. वो केवल जितना उसके संबंध से जुड़ा हुआ है उतना ही बताते हैं. बट हिज वर्क इज गोइंग ऑन इन वेरियस डायरेक्शंस. तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो बहुत कुछ उनके पास है जिसको तुम्हें अभी तक नहीं बताया है, जो मैं अभी तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसका तुम्हारे दृष्टिकोण से कोई वजन न हो और जब तक कि वो निर्णय लेने के पश्चिमी विधि का अतिक्रमण न करता हो. ये थोड़ा सा एक अजीब सा सेंटेंस है which took time for me to comprehend. Perhaps he wants to tell that this if there is something which cannot be understood by the Western mind, then he has to tell and explain it to him in a different way. Until it is within the understandable for the Westerns also, then there is no need for any extra effort. किंतु अब मेरे लिए वो समय आ गया है कि मैं आपको बताने का प्रयास करूं ताकि कम से कम आप समझने का प्रयास करें. ताकि अभी तक अधिकांश पश्चिमी थियोसॉफिस्ट जैसे सीसी मैसी की समझ की अपेक्षा अधिक उचित होगा. एक्चुअली सीसी मैसी was a very famous spiritualist in the Great Britain, that is England, but he had his knowledge was limited up to the mediums and spirits. He thought the spirituality means only the coming of spirits into the human bodies. So
he was looking this also, SPB's case also, only in that fashion. And so always he considered that he is some kind of a spook-like thing who is telling him some informations. So that's what he's referring to that. कि अधिकांश पश्चिमी थियोसॉफिस्ट जैसे सीसी मैसी की समझ की अपेक्षा अधिक उचित होगा, और शायद मैं अंतिम जीवित व्यक्ति हूँ जो अपनी जागृत अवस्था में तुम्हारे मसीहा और प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा हूँ. एक्चुअली वर्किंग in being in human body, at the same time approaching a person at a distance by his higher powers, this is not very common. This is not very common thing, though it is in the Egypt also, and also in the Europe also. There are so many masters who are living in the physical body also, but for him it is the last case. He says, I am the last person who is telling you in the waking consciousness. फिर भी मुझे सच्चाई का खेद होगा यदि तुमने झूठ मूठ उन शक्तियों को रखने वाला मानकर हमारे पास कभी नहीं रही. तो he says that he will be very sorry if he also feels like Messi that I have some kind of spirits, or I am myself a spirit through which I keep on working. या हमें उनकी अयोग्य वस्तुओं की जांच करने और उनको अयोग्य मान लेने का गुनहगार मानकर मुझे सहन करने के बाद मुझे नैतिक विरोधाभास माना. एक्चुअली अब जो बताने जा रहे हैं उनको अयोग्य मानते हैं और उनकी जांच करके उनको गुनहगार मान लेना, यह आप सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसके बारे में ही इज नॉट श्योर. और अगर हमको माना कि हम जो है मॉरली निगेटिव हैं क्योंकि हम दूसरों की कमियों को छानते हैं, देखते हैं, देन आई विल बी ओनली सॉरी फॉर दिस. Sorry, it is hiding to some extent for me at least. मैं कह रहा हूं कि मिस्टर मैसी का पत्र उनकी व्याख्या करता है कि मेरा ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है. ऐसा कोई सबूत जो उनके अंतिम निर्णय लेने के लिए अकाट्य साक्ष्य सिद्ध हो सके वो हमारे लिए किसी महत्व का नहीं है क्योंकि हम पूरा सत्य जानते हैं. ऐसा कोई सबूत जो उनको अंतिम निर्णय लेने के लिए अकाट्य सिद्ध हो सके वो हमारे लिए किसी महत्व का नहीं है क्योंकि हम पूरा सत्य जानते हैं. एक्चुअली what he feels that others may think some document to be enough for proving me that I am this and that, or he are this and that. So he says, because I know the whole truth, there is no need for any evidence for me. Verse 1982 के अंतिम दिन असफल होने वालों की लिस्ट में उनका तीसरा नंबर आता है. Actually, there were many people who were in the list of Chelaship, or rather you can say they were in as a probationary members under provision, and out of them only one has been selected as a Chela, and that is he himself, Mr. Sinnett, and all others are failed. And he says that Mr. Messi is number 3 among the people who have failed. इसके पहले कि मुझे गलत समझा जाए मैं पहले से ही कह देना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसा नहीं है. Actually, what he feels that once the result comes of the Chelaship,
then they will feel antagonistic against me, that why they have been failed. And then they will misunderstand me. That's why he is telling in the beginning itself. ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे लंदन में प्रस्तावित नई शाखा का कोई संबंध हो, फिर भी उनकी व्यक्तिगत प्रगति से इसका पूरा संबंध है। मुझे इसका बहुत खेद है, किंतु मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने को किसी व्यक्ति से इतने सुरक्षित रूप से बन जाऊं, या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति व्यक्तिगत सहानुभूति और श्रद्धा हो कि उनके प्रति श्रद्धा के कारण मेरी गतिविधियां रुक जाएं और मैं उससे भी महान कार्यों को न कर पाऊं। इसलिए मैं उनको उनकी वर्तमान गलतियों पर छोड़ता हूं। एक्चुअली he says that they don't do any favor to anybody, and neither he is attached to anybody which will enable them to do such a favor. So he says, I don't want to be attached to somebody with whom due to which I should do some favor to anybody, because if I do a single symptom of favor, then he will not be able to do those great things which are required for him to do. जो बड़े कार्य मेरी गतिविधियां रुक जाएं और मैं उससे भी महान कार्यों को न कर पाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए जो जिस योग्य है उसी के हिसाब से होता है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसका संक्षिप्त अर्थ है, मिस्टर मैसी सबसे अधिक अपरिचित भ्रांतियों से गुजर रहे हैं और साथ साथ स्वप्न के बाद स्वप्न देख रहे हैं। यद्यपि मिस्टर मोसेस जैसा कोई मीडियम ऐसा नहीं करता है। सबके साथ यदि देखें तो वो सबसे महान, सबसे शुद्ध व्यक्ति हैं, और सूक्ष्म में कहें तो वे जिन्हें मैं अपनी पहचान के सबसे अच्छे लोग समझता हूँ उनमें से एक है, किंतु अनेक बार गलत दिशाओं पर बहुत विश्वास करने लगते हैं और उनमें उचित इंट्यूशन की पूरी कमी रहती है। एक्चुअली वी नो दैट द वाइफ ऑफ मिस्टर मैसी इज ए मीडियम, एंड whatever she says he believes it, and what master tries to indicate to him that don't go behind the spirits like this. They are just spirits, they don't know much, they are just like human beings, nothing more than that. But otherwise he is a good man. इंट्यूशन उनमें आ जाएगा, किंतु तब एसपीबी और कर्नल ऑलकॉट नहीं होंगे। That's what he feels. In future he will be able to understand better, but at that time these people will not be there. तब तक के लिए याद रखो कि उन्हें भी बता दो कि न मुझे अनुयायी चाहिए और न पहचान, न पब्लिक की किसी व्यक्ति विशेष की, और न मुझे ब्रिटिश शाखा से कुछ लेना देना है, और न इसके लिए कुछ कहना है। 4 यूरोपियंस 12 महीने पहले प्रोविशन पर रखे गए थे, और चार यूरोपियंस 12 महीने पहले प्रोविशन पर रखे गए थे और उनसे केवल एक तुम भरोसे के योग्य पाए गए हो। इस वर्ष व्यक्तियों के स्थान पर सोसाइटियां होंगी जिन्हें टेस्ट किया जाएगा। परिणाम उनके सामूहिक कार्यों पर निर्भर करेगा, not on the individual persons but on the work of the whole lodge in whole.
So this was the last chance, he says. और मोसेस कह रहे हैं कि मैं मिसेस के को प्रेरकों के समूह को मिसेस के प्रेरकों के समूह को उस दिन में ज्वाइन कर लूंगा। मिसेस के कौन है? एक मिसेस किंगस्टन है और वो एक मीडियम है और उनको कोई स्पिरिट गाइड्स जो है वो गाइड करती हैं। तो ही सेज ही आल्सो लाइक ही आल्सो ए स्पिरिट गाइड। और वो जो गाइड्स हैं उनके मिसेस के वे इनको भी अपने में मिला लेंगे। इस तरह की भ्रांतियां पाल के रखा है उन्होंने। तो उनको सेंट जॉन द बैप्टिस्ट और बाइबल के रईसों के मुखौटों में रहने दें। शर्त यह है कि ये लोग हमारे सिद्धांतों की शिक्षा दें, जितना चाहें उतना उसमें विदेशी घास फूस भर दें, तो भी किसी महान बिंदु की प्राप्ति होगी। उनका कहना है कि वॉट एवर इज ईस्टर्न टीचिंग्स एंड दे शुड बी टोल्ड टू पीपल in the England, and if they want to mix up some Christianity and these thoughts and in that, they have no objection. But unless and until these truths are known by them, they cannot go further. सीसी मैसी प्रकाश चाहते हैं, उनका हमें स्वागत है तुम्हारे माध्यम से। महत्व केवल इसका है कि वे चाहते हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट ही शुड बी एनलाइटेंड। तो कह रहे हैं उनको एनलाइटन हम करवाएंगे, लेकिन हम डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जो शिक्षाएं आपको दी गई हैं, आपके माध्यम से मिस्टर सीसी को शिक्षाएं भेजें, ये हम चाहते हैं। चाहे वे समझें कि लाइट बेरर ने अपनी टार्च तुम्हारे हाथ में दे दी है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अब वो जो मिस्टर सीनेट हैं उनको इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि वो दूसरों को बता सकते हैं कि ट्रुथ्स क्या है। वे केवल तुम्हें सावधान कर रहा, मैं तुम्हें केवल सावधान कर रहा हूं। एक प्रकरण जो अभी इतना छोटा है, जो स्त्रियों को का निर्दोष दिखावा जैसा लगता है, यदि तुरंत ठीक नहीं किया गया तो बहुत बुरे परिणाम लाएगा। मिसेस किंग्सफोर्ड द्वारा मिस्टर मैसी को लिखे गए पत्र में वे ब्रिटिश टीएस की प्रेसिडेंटशिप के लिए इस शर्त पर मान रही हैं कि उनका विश्वास, जिसे अकाट्य सत्य के रूप में संकेत कर रही हैं, कि पूर्णता का मार्ग दिखने के पहले कोई नहीं जानता था कि ओरिएंटल स्कूल पुनर्जन्म के बारे में मानता है। इसका मतलब कि इंडिया में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, और जब आदमी ये परफेक्शन के मोड पर जाता है चेलाशिप में, तभी उसको ये पता लगता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अभी उन्होंने इंडिया में जो भारत में जो क्या बोलेंगे विश्वास है, जनमानस के विश्वास, उनके बारे में नहीं जानते। जो जोड़ती हैं कि देखना है कि उस पुस्तक में कितना कुछ कहा गया है जिसे अडेप्ट अनावृत करके अपना खजाना खोलने में की जल्दबाजी कर रहे हैं, जिसका अभी तक बहुत आनाकानी के साथ ध्यान दिया जाता था। एक्चुअली उनका कहना है कि जो पाठ के अंदर के जो इंफॉर्मेशन थी, जो शिक्षाएं थी मार्ग की, दे वर नॉट बीइंग गिवन फ्रीली टू पीपल। और वो जो है और और कहा जा रहा है कि एक ऐसी पुस्तक आ रही है जो बहुत सारे जो अंदर की बातें हैं, जो मार्ग की बातें हैं, वो बताई जाएंगी, खोली जाएंगी। तो वो कह रही है कि देखती हैं क्या क्या बताएंगे वो। मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक रेडी कूल। वो एक तरह से टांट कर रही है इन मास्टर्स के ऊपर। इसका उत्तर देते हुए
मिस्टर मैसी ने उनके पत्र का उत्तर दिया है और उनके इस सिद्धांत पर पूरी निष्ठा जताते हैं और इसके लिए उस महिला को निपुण बधाई भेजते हैं। यह उनके किसी अधिकार के श्रेय को दूषित नहीं करेगा। वो कहते हैं संभवतः ऐसा फील किया जाता है कि कम्युनिटी जिसके बीच इस प्रकार का कार्य जैसे परफेक्ट वे को उत्पादित किया जा सकता है और उसे स्वीकृति मिल जाए, वो प्रकाश के लिए तैयार है। मतलब कि वो अगर उनको पहले एश्योरेंस दे दें कि मुझे प्रकाश दिया जाएगा, तभी मैं प्रेसिडेंट के पद पे काम करूंगी। फिर से पढ़ते हैं इसको। वो कहते हैं संभवतः ब्रदर्स के द्वारा यानी मास्टर्स के द्वारा ऐसा फील किया जाता है कि कम्युनिटी जिसके बीच इस प्रकार का कार्य जैसे परफेक्ट वे को उत्पादित किया जा सकता है और उसे स्वीकृति मिल जाए, वह प्रकाश के लिए तैयार है। अब मतलब व्हाट ही मीन्स बाय दिस कि the world is now ready to receive the true information. Naturally, the whole world is not ready, but there are few who can understand. इस पर इस विचार को धारा में आने दीजिए और इसका झुकाव होगा कि यह इस उच्च प्रतिष्ठित लेखिका के स्कूल का एक पद बन जाएगा, जो यद्यपि एक फिफ्थ राउंडर है, विचारणीय मात्रा में दिखावा और तानाशाही इसलिए कट्टरता से मुक्त नहीं है। मतलब उनका कहना है कि अभी वो आएंगी, क्योंकि अभी एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लाइन में या अध्यात्म के मार्ग में एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगी, इसलिए वो इनके आसपास के और इनके समान सोचने वाले लोगों भी एकत्रित हो जाएंगे और वो इस ब्रिटिश सोसाइटी का एक गुट बन जाएगा, एक भेटो बन जाएगा। इस प्रकार मिस्टर मेसी, इसमें कुछ है, चलिए इस प्रकार इस मिसकॉन्सेप्शन को बढ़ने दें और इसे अवांछित महत्व मिलने दें। ये अंदर ही अंदर मसीहापन को फीड करके अपनी आध्यात्मिक स्थिति को हानि पहुंचाएंगी और तब उनके दीक्षक और हमारे द्वारा चाही गई जांच के कार्य में तुम रुकावट डालोगे। मेरे मित्र, इसलिए मिस्टर मैसी को सच्चाई लिखो। उनको बताओ कि तुम पुनर्जन्म के पूर्वी मतों के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए हो और इस पर कार्य करने के प्रकट होने के अनेकों महीने पहले जुलाई से रीइंकार्नेशन या व्यक्तिगत पुनर्जन्म और आध्यात्मिक जीव में अंतर, मोनाड में अंतर सिखाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं 18 महीने से यही सीख रहा हूँ कि पुनर्जन्म क्या होता है और मोनाड क्या होता है। वो सोचते हैं कि वो जो आत्मा है, असली आत्मा, वो जो है तुरंत पहुंच जाएंगे हम, वही आ जाती है। वो नहीं आती है। एक अंतर जिसकी ओर पहली बार तुम्हें 5 जुलाई को बॉम्बे में संकेत किया गया था और उनकी एक दूसरी परेशानी को दूर करने के लिए उनसे कह दीजिए कि उन्होंने बंधुओं के प्रति किसी निष्ठा की उनसे बंधुओं के प्रति किसी निष्ठा की आशा नहीं की जाएगी और यदि ऑफर भी की गई तो स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि आप अगर अपनी निष्ठा ऑफर करते हो तो वो हमें नहीं चाहिए और ना कोई आशा की जाती है
कि आप हमारे ऊपर निष्ठा करें या हमारे ऊपर विश्वास करें, इसलिए कि यूरोपियनों के साथ अब कोई अन्य प्रयोग करने की वर्तमान में हमारी कोई मंशा नहीं है, और तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य के माध्यम से अरहत फिलॉसफी की शिक्षाएं नहीं देना चाहते। दिस इज वेरी क्लियर। और ये क्यों कह रहे हैं यूरोपियंस के बारे में? क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया है विशेष रूप से मिस्टर ह्यूम से, उससे उन्होंने एक पाठ सीख लिया है। उनका कहना है कि ह्यूम के साथ उनके जो संबंध थे, जो पत्राचार चल रहा था, जो शिक्षाएं दे रहे थे ह्यूम को, वे अचानक बंद हो गई हैं। आपके औजारों की अपेक्षा हम शीघ्रता न करने के सिद्धांत के हकदार हैं। उनका कहना है कि आप लोगों की ट्रिक कि हमें तुरंत पता लग जाए, इसकी अपेक्षा हम चाहते हैं कि जब जिसका टर्न आए तब वो सच्चाइयों को जाने। कोई जल्दबाजी हम नहीं करना चाहते। और मेरे साथ और अधिक गहरे पानी में पीछे पीछे आइए। He is telling to Senate that now I am going to tell you something which may take you to the inner side of the whole thing, so you follow me. एक अस्थिर कंपन लाइन के दूसरी ओर एक संदिग्ध व्यक्तित्व, एक घोषित सिद्धांतहीन दूसरी ओर एक प्रतिशोधात्मक शत्रु। एक अस्थिर कंपन लाइन के दूसरी ओर एक संदिग्ध व्यक्तित्व, एक घोषित सिद्धांतहीन दूसरी ओर एक प्रतिशोधात्मक शत्रु। उनका कहना है कि हम जिसकी बात करना चाह रहे हैं वो, उसके एक तरफ तो संदिग्ध व्यक्ति है, जैसे वो लोग हमको हमारे बारे में सोचते हैं कि पता नहीं ये हैं कि नहीं है, whether they are really human beings or they are spirits, because he has never appeared before them. और दूसरी ओर सिद्धांतहीन और प्रतिशोधात्मक शत्रु हैं, ये स्थिति है। और तुम मानोगे कि व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की परिस्थिति को से हमारी नींद नहीं खराब हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि he says that if you feel like this or if there are situations like this, we don't get disappointed, we don't lose our sleep because it matters nothing to me. मैं ये शब्द कह रहा हूँ और इनका पालन करूंगा, and I am telling this and I will follow this. जहां तक ब्रिटिश थियोसॉफिकल सोसाइटी और कुछ अन्य सदस्यों की प्रगति का प्रश्न है, दोनों स्थानों के बीच में जो शत्रुता की धारा बह रही है वह निश्चित ही उन लोगों को प्रभावित करेगी जो इसके रास्ते में आएंगे। इसको फिर से पढ़ते हैं। जहां तक ब्रिटिश थियोसॉफिकल सोसाइटी और कुछ अन्य सदस्यों की प्रगति का प्रश्न है, दोनों स्थानों के बीच में जो शत्रुता की धारा बह रही है, एक्चुअली सोसाइटी में के अंदर ही तमाम सारे शत्रु हो गए हैं, सब एम्बिशियस हैं, सब अपने लिए कुछ चाहते हैं, वो निश्चित ही उन लोगों को प्रभावित करेंगी जो इसके रास्ते में आएंगे। एंड संयोग से एक लंबे समय में तुम भी आओगे। तुम में से कौन तुम में से कौन उन दोनों भद्र व्यक्तियों को के स्पष्ट कथनों पर अविश्वास करेगा? दोनों ही माने हुए महान विद्वान हैं और उनमें से कम एक तो कोई असत्य कहने में असमर्थ है, जैसे हवा में उड़ना। इस प्रकार एक चक्र का अंत होता है और फिर भी एक व्यक्तिगत खतरा है, दोनों ब्रिटिश थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए और तुम्हारे लिए भी। अभी सोसाइटी को कोई हानि नहीं हो सकती है। प्रस्तावित नई शाखा और उसके सहायकों के लिए बहुत शरारतें भंडार में हैं, जब तक कि तुम मिस्टर मेसी को कुछ सत्यों की सच्ची परिस्थितियों
और उनकी कुंजियों से लगातार और अवगत कराकर नहीं रखा गया। मिस्टर मैसी को कुछ सत्यों और सच्ची परिस्थितियों और उनकी कुंजियों से अवगत नहीं कराकर रखा गया। एक्चुअली जैसे हम अभी आगे देखेंगे इस लेटर में कि मिस्टर ह्यूम ने मिस्टर मैसी को, जो ब्रिटिश थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड थे, उनको कुछ पत्र लिखे हैं और जिसमें मास्टर्स को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। क्या तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे लिए ये sorry that it goes beyond the screen. That's why I have to reduce again and again. तुम में से कौन उन दोनों भद्र व्यक्तियों के स्पष्ट कथनों पर अविश्वास करेगा? दोनों ही माने हुए महान विद्वान हैं और उनमें से कम एक तो कोई असत्य कहने में असमर्थ है, जैसे हवा में उड़ना। इस खतरे का चक्र का अंत होता है, फिर भी व्यक्तिगत खतरा है कि दोनों ब्रिटिश थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए और तुम्हारे लिए। और ये इसको पढ़ चुके हैं। यह तुम्हारे लिए कोई समाचार नहीं है। दैट आई एम नॉट टेलिंग यू न्यूज, इट इज ऑलरेडी यू नो इट। कि यदि मैं कहूँ कि ऐसी मिस्टर ह्यूम के की प्रवृत्ति थी कि एक्लिप्टिक का निर्माण हुआ, कि जब एक्लिप्टिक का निर्माण हुआ जिसके कारण हमारे चीफ्स ने मिस्टर फर्न और मिस्टर ह्यूम को साथ लिया था। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू इन सम अदर लेटर्स ऑफ महात्मा इट इज इंडिकेटेड, ये कहा गया है कि ये मिस्टर ह्यूम जो हैं, अगर वो मास्टर्स की शिक्षाओं की तरफ झुक जाएं तो उनके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता की तरफ कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि अगला प्लान ये है कि एक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी का गठन होगा जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी। लेकिन उनका डर था कि यदि ये ऐसी शाखा किसी इंडियन ने खोल दी तो ब्रिटिश सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसको 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 अलाउ नहीं करेगी। इसीलिए वो चाहते थे कि कोई इंग्लैंड का ही कोई व्यक्ति हो जो इसकी प्रारंभ करे और उसको परमिशन मिल जाए और उसके बाद में इंडियंस इसको संभालेंगे। और दैट एग्जैक्टली वही हुआ। मिस्टर ह्यूम ने 1985 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और वो बाद में तो ह्यूम पीछे रह गए और दूसरे लोगों ने उसकी बागडोर संभाल ली। and that became the main party which was responsible for Indian national freedom. तो इसी दृष्टिकोण से, और ये भी आगे बताया है कि मिस्टर ह्यूम का जो फैमिली बैकग्राउंड है और उनकी जो आत्मा की स्थिति है, उससे लगता था कि एक अच्छे इंसान सिद्ध हो जाएंगे। अभी नहीं तो कुछ दिन में सीख जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इनको सिलेक्ट किया था। लेकिन व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, उसके बारे में आगे बताते हैं। किंतु मिस्टर ह्यूम ने बहुत सख्ती से उनको और फर्न को, दोनों ही लोगों को, फर्न कौन था? फर्न उनका एक बाबू था, उनके ऑफिस में काम करने वाला एक क्लर्क था, और उसको भी चेला के रूप में चुना गया था। चेला के रूप में नहीं बल्कि शामिल करने के लिए चेला के रूप में। तो उन्होंने उसी टाइम पे मना कर दिया था कि हम तुम्हारे चेला नहीं बन सकते। किंतु मिस्टर ह्यूम ने बहुत सख्ती से उनको और फर्न को एक मधुर, सुंदर, आध्यात्म और सत्य की आकांक्षा करने वाले लड़के जो चेला के रूप में लेने का विरोध किया था मिस्टर ह्यूम ने। हम लोगों को प्रतिदिन नियम डिक्टेट किए जाते थे।
ये वो कह रहे हैं, मास्टर्स कह रहे हैं कि उनके जो चीफ्स हैं वो हमको बताया था कि ऐसा करो वैसा करो, तमाम सारे रोज नए नियम बताते थे और हमें प्रतिदिन फटकार मिलती थी कि हम जिस चीज को चाहते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो भी तुमको नहीं उसको रियलाइज कर पा रहे हो। लेकिन वो हम मिस्टर ह्यूम की वजह से मजबूर हो गए थे। और ये आपके लिए नया नहीं होगा, यद्यपि आपको घृणायुक्त और स्तंभित करेगा कि दोनों को एक दूसरे को निकट संबंध में लाया गया था, ताकि दोनों एक दूसरे के गुणों और दोषों को अपने सच्चे प्रकाश के से चमक सकें। पूर्वी प्रोफेशन के ऐसे ही नियम है। एक्चुअली क्या है, यद्यपि मिस्टर फर्न जो थे वो उनके ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उनका ऑफिस उन्हीं के मिस्टर ह्यूम के घर में बना दिया गया। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के बहुत निकट आ गए और वहीं पे उन्हीं के घर में वो काम करने जाते थे। तो ये जो है मास्टर्स ने किया है। अब निश्चित और बहुत अच्छे कारणों से मुझे सीसीएम को छोड़ना होगा। सीसीएम का मतलब है सीसी मैसी। अब निश्चित और बहुत अच्छे कारणों से मुझे सीसीएम को छोड़ना होगा। उनके अपराधों की माया में, एसपीबी के बारे में और हमारे अपने नैतिक लचरता के कारण अब मिस्टर ह्यूम को उनके सच के प्रकाश में तुम्हें दिखाने का समय आ गया है। इस प्रकार हमारे विरोध में एक झूठे साक्षी के लिए रास्ता बन रहा है। जबकि मुझे खेद है इस सत्य के बारे में कि मैं अपनी संस्था के नियमों से और अपनी प्रतिष्ठा के भाव से एक यूरोपियन के लिए कितना भी नगण्य क्यों न हो, यानी ये जो प्रतिष्ठा का भाव है, वो कह रहे हैं कि एक यूरोपियन के लिए कितना भी मीनिंगलेस क्यों न हो, क्योंकि कभी भी झूठ बोल लेते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए है कि ऐसे सत्यों का वर्तमान समय में खुलासा न करें जो सीसी मैसी को तुरंत व्यक्त कर देंगे कि वे कितनी बड़ी गलतफहमी में है थे। सीसी मैसी को भी नहीं बताना चाहते हैं कि वो किस गलतफहमी में है। यह तुम्हारे लिए कोई समाचार नहीं होगा यदि मैं कहूं कि यह मिस्टर ह्यूम की प्रवृत्ति थी कि जब एक्लिप्टिक का निर्माण हुआ, एक मिनट हो चुका, और उनके अंदर छठवें और सातवें तत्व बिल्कुल क्रियाहीन और पैरालाइज थे। उचित और अनुचित क्या होता है, इसका कोई अंतर उचित और अनुचित क्या होता है इसका कोई विचार नहीं था। संक्षेप में, प्रत्येक वस्तु के लिए गैर जिम्मेदार और पाशविक मनुष्य को संक्षेप में प्रत्येक वस्तु के लिए गैर जिम्मेदार और पाशविक मनुष्य के लिए एक सीधा और सदा सदा तत्पर कार्यपालक। मैं इस प्रकार के सब्जेक्ट, जिसे हम पहले से जानते थे कि वह निश्चित ही असफल होने वाला है, का भार अपने ऊपर न लेता। एम ने सहमति दे दी थी क्योंकि चीफ ऐसा चाहते थे और वह तुमको जो उसको अपना मित्र कहते थे उसका नैतिक स्टेमिना दिखाने के लिए बहुत उपयोगी लग रहा था। एक्चुअली ही वांटेड टू चेंज मिस्टर ह्यूम, क्योंकि उनके मास्टर्स ऐसा चाहते थे और मिस्टर यम ने उनको आश्वासन भी दे दिया था, मास्टर एम ने। तुम सोचते हो कि मिस्टर ह्यूम यद्यपि एक जेंटलमैन की अच्छी भावनाओं से हीन है, फिर भी अपनी स्फुरना और जन्म के अनुसार
वे एक भले आदमी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम सोचते हो कि मिस्टर ह्यूम यद्यपि एक जेंटलमैन की अच्छी भावनाओं से हीन है, फिर भी अपनी स्फुरणा यानी इंट्यूशन और जन्म के अनुसार वे एक भले आदमी हैं। मैं पश्चिमी देशों के कोड ऑफ ऑनर का बहुत जानकार होने का दिखावा नहीं करता हूँ। ये डिफरेंस ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न में, तो वही कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों में जो ऑनर का जो स्टैंडर्ड है वो दिखावा है। तो पश्चिमी देशों में कोड ऑफ ऑनर का बहुत जानकार होने का दिखावा नहीं करता हूँ। आई डोंट मीन टू से दैट आई नो ऑल दैट। फिर भी मुझे संदेह है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति किन्हीं व्यक्तिगत पत्रों के मालिक की अनुपस्थिति में उसके कोट जिसे वो काम करते समय लापरवाही से उतार कर बरामदे में रख गया हो। इसको मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो मिस्टर फर्ड थे उनका ऑफिस वहीं पे उन्हीं के घर पे था, मिस्टर ह्यूम के। और वो कुछ काम करना था तो अपना कोट वहीं उतार गए थे और कोट के अंदर चाबियां पड़ी हुई थी। वो चाबियां मिस्टर ह्यूम ने जब वो दूर चले गए तो उससे निकाल कर उनका ड्रायर खोला और उसमें से तमाम सारे पर्सनल लेटर्स जो हैं वो निकाल कर उसको पढ़ लिए। ये बहुत बड़ा एक ब्रीच है ऑनर की, अपनी खुद की। तो उसी के बारे में रेफरेंस कर रहे हैं एक। फिर भी मुझे संदेह है कि क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत पत्रों के मालिक की अनुपस्थिति में उनके कोट जिसे वो काम करते समय लापरवाही से उतार कर बरामदे में रख गया हो, कि जेब से चाबियां निकालकर उसका ड्रायर खोल कर उसके व्यक्तिगत पत्र निकालना और पत्र पढ़कर उनमें से कुछ बातें नोट कर लेना और उसके लेखकों को घृणा और प्रतिशोधात्मक पत्र लिखना, क्या पश्चिम की सभ्यता के अनुसार एक औसत जेंटलमैन एक आदर्श मानेगा? इस प्रकार के उनसे भी बड़े कारनामे मिस्टर ह्यूम के द्वारा किए गए हैं। यदि मैंने तुम्हें पिछले अगस्त में बताया होता तो तुम नहीं मानते। और अब मैं यह उनके हस्ताक्षर के साथ सिद्ध कर सकता हूँ कि चिट्ठियां उनके पास हैं। ईमानदारी के इस कार्य में जब एम के द्वारा 2 बार पकड़े गए और बंधु डब्लू टोटे ने उद्देश्य पूर्वक, या दामोदर ने, ये उनके चेलों के नाम है, ईमानदारी के इसी कार्य में जब एम के मास्टर एम मौर्य के द्वारा 2 बार पकड़े गए, मेरे बंधु डब्लू टोटे ने उद्देश्य पूर्वक या दामोदर ने उद्देश्य पूर्वक लिखने को कहा, एक पत्र मिस्टर फर्न को मिस्टर ह्यूम के द्वारा मुझे लिखे गए पत्र की प्रति संलग्न करते हुए लिखा। इन पत्रों के बारे में जानकारी उनके प्रकाश के लिए ऐसा किया गया। अब समय आया तो उनके सच्चे जेंटलमैनली इंस्टिंक्ट और उनकी ईमानदारी सामने आ गई, जिसको वे मानवता में सबसे ऊपर बोस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा टांट है कि जो समझते हैं, जो कहते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है वो इस इवेंट से सामने आते हैं जब वे अपने स्वयं के जाल में फंस गए हैं। घृणा और लोगों का दुरुपयोग और तिरस्कार करने की उनकी अबाध प्यास जो ऑलकॉट के लिखे गए एक पत्र से भी स्पष्ट होती है। इसके बाद उन्होंने मिस्टर ऑलकॉट को एक पत्र लिखा है। ऑलकॉट एक ऐसे व्यक्ति हैं
जिनकी ऊंचाई उनकी अपेक्षा अमाप पे है, वो उनके एक अन्य विरोधी है। अल्काट के बारे में कहा है कि अल्काट का जो स्टेटस है, स्पिरिचुअल स्टेटस, और उनका स्पिरिचुअल स्टेटस है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आई एम सॉरी दैट टाइम मुझे थोड़ा इंडिकेट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आई डोंट नो एट व्हाट टाइम आई हैव टू क्लोज। Sir, you have another 9 minutes. You can continue. हैं? 9 minutes more, sir. अच्छा, 9 मिनट। 9. हाँ. ओके। उन्होंने मिस्टर ह्यूम को एक अदूरदर्शी स्वीकारोक्ति में फंसा दिया है। जब वे पकड़े गए और कॉर्नर किए गए तो उन्होंने एक निम्न कोटि के झूठ का सहारा लिया। मैं इस व्याख्या से आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि किसी के प्राइवेट पत्र से जो कुछ तुम्हारी आंखों के लिए न हो, कोई भाग एक्सट्रैक्ट कर लेना जो कॉन्फिडेंशियल से कहीं अधिक बढ़कर हो, फिर भी मिस्टर ह्यूम के एड्रेसी से प्रार्थना करते हैं कि उस पत्र के सारे थियोसॉफिस्ट को पढ़ाया जाए। एक्चुअली जो मास्टर्स ने किसी एक प्रोफेशनली चेला को एक पत्र लिखा है, वो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सब सीक्रेट होते हैं और दे आर नॉट टू बी शोन टू एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। तो वो केवल कॉन्फिडेंशियल ही नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। और ऐसे पत्र को चुरा लेना और उसके बाद ये कहा जाना कि इस पत्र को सारे लोगों को पढ़ा दो, ये कितनी घिनौनी बात है। मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारे द्वारा अनजेंटलमैनली इंस्टिंक्ट के लिए दोषी नहीं पाया जाऊंगा। ये जो अनजेंटलमैनली इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो काम है किसी की त्रुटियां खोजने का, ये काम जेंटलमैन का काम नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराइए, क्योंकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी बच जाए और आप समझ जाएं कि इसमें क्या हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति, सॉरी, कोई ऐसा व्यक्ति जो यूनिवर्सली जेंटलमैन के रूप में पहचाना जाता है किंतु निम्न कोटि का दुष्ट होता है, वह प्रत्येक अन्य व्यक्ति के लिए बाहर से जेंटलमैन ही है, किंतु अपनी विलेन आत्मा को छिपा कर रखता है। सिंपल है, जो आदमी प्रतिष्ठित है, नेता हैं आजकल के जैसे, तो वो देखने में बड़े सुंदर हैं, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है ये लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो स्वयं तो जानते ही हैं। उन्हें जैसा अच्छा लगे वैसा प्रकाश में मुझको देखें। ये एक्सट्रैक्ट मैं आपको भेज रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इसकी सच्ची प्रकृति से सावधान रखने के लिए मुझे अत्यंत आवश्यक लगा। ये मिस्टर ह्यूम की जो एक्चुअल प्रकृति है उसके बारे में उनको बताना चाह रहे थे। इसके लिए तमाम सारे एक्सट्रैक्ट ठीक के उन्होंने भेजे हैं ताकि वो समझ सकें ठीक से। मैं इस समय लंदन के थियोसॉफिस और सदस्य बनने के लिए प्रत्याशियों को पत्र लिखने में व्यस्त हैं। वे इस समय जो मिस्टर ह्यूम हैं वो क्या कर रहे हैं कि लंदन के जो थियोसॉफिस्ट हैं और जो वुडवी चेलाज हैं, वुडवी जो मेंबर बनने के इच्छुक हैं, उनको सबको पहले से पत्र लिख रहे हैं और एक खास उद्देश्य से कि वे पश्चिम के सारे मिस्टिकों को उनके विरोध में खड़ा कर सकें, जो एक नास्तिक, मिथ्याचारी और जादूगरों का बंधुत्व है। वो ये प्रचार कर रहे हैं कि ये जो मास्टर्स हैं, दे आर द ब्रदरहुड ऑफ एथिस्ट एंड हिपोक्रेट्स एंड सॉर्सरर्स। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इस पत्र का आशय क्या है। मैं आपको किसी संभावित घटना या तुम्हारे मित्र और अपने शुभ चिंतक द्वारा किसी
द्वारा की गई शरारत की परिस्थिति में सहायता करेंगे। ये पत्र आपको किसी संभावित घटना या तुम्हारे मित्र और हमारे शुभ चिंतक द्वारा, इसको हम बड़ा कर रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ लें। ये आपको किसी संबंधित घटना जो तुम्हारे मित्र और तुम्हारे शुभ चिंतक द्वारा की गई शरारत की परिस्थिति में सहायता करेंगे। जो मेरे बंधु मेरे मित्र से कहीं अधिक हैं, उनको मिस्टर सिनेट को नहीं, अपने अपने चेलाओं को कह रहे हैं कि मेरे बंधु मेरे मित्र से कहीं अधिक है, दोस्त नहीं है वो, उससे ज्यादा है। उस पर आरोप लगाते समय एक चोर, कायर, झूठा और मूर्खता का अवतार दयापूर्ण तारीफों से मेरा तिरस्कार करेगा। वे सोचते हैं कि मैं इतना दगाबाज हूं कि ये सब आत्मसात कर लूंगा और इतना मूर्ख हूं कि उनके मूल की माप नहीं कर पाऊंगा। याद रखो, अच्छा जी, याद रखो कि एक ऐसा द्वंद्ववादी मित्र से सावधान रहना चाहिए जो अपनी शर्ट के नीचे कवच पहन कर रखता हो। मतलब वो सोचता है कि हम तो अपने को बचा ही लेंगे और चाहे उतना किसी पे कीचड़ उठा लो। उनके अच्छे कार्य बहुत हैं, किंतु बुरे उनसे भी अधिक हैं। और पहले वाले अधिकांशतः नियंत्रित और उनके असंगत आत्म प्रेम और लड़ाकूपन के कारण बढ़ गए हैं। और यदि अभी भी सुनिश्चित नहीं हुआ तो यह अंतिम रूप से उस संवेग में बदल जाएगा जिसका परिणाम उनका अगला जन्म हुआ। हम किसी सीमा तक पूर्णता से भविष्य बता सकते हैं कि वे कभी अडेप्ट नहीं बन पाएंगे और न इस भविष्य इसमें इस जन्म में न भविष्य के जन्म में। उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा ने इस मन में जन्म में अपने विकास का पूरा चांस प्राप्त कर लिया है। उनका टेस्ट किया गया है, जैसे सभी का टेस्ट लिया जाता है। बेचारे एक पतंगे की भांति जो रोथनी कैसिल है, वो शिमला में मिस्टर ह्यूम का जो हेरिटेज महल है उसका नाम है। तो वही उनका कहना है कि उनका टेस्ट किया जा गया है जैसे सभी को टेस्ट किया जाता है। बेचारे एक पतंगे की भांति जो रोथनी कैसिल और उनके साथियों की मोमबत्ती में झुलस गया है, किंतु आत्मा और केवल आत्मा की विजय हुई है। मेरे ख्याल जब टाइम हो गया है और Yes, हम sir. बाकी के स्लाइड्स जो हैं वो अगले सेशन में प्रेजेंट करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। और जो हिंदी समझते हैं उनके लिए तो आज आपने चॉकलेट दे दिया, इतनी अच्छे से समझाया। तो वी ओपन अप फॉर डिस्कशन सर। अपना आई डोंट पीपीटी नो वेदर यू अंडरस्टैंड हिंदी और नॉट। सर मैं समझती हूँ, बट वी हैव फिरोज एंड जीनू मास्टर। आई डोंट नो इतने प्रोफिशिएंट हैं कि नहीं हिंदी में। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो हिंदी में प्रोफिशिएंट नहीं है, बट हिंदी जो समझते हैं उनको तो मजा आ गया होगा आज, आई एम श्योर। तो आज सर आप पीपीटी स्टॉप कर दीजिए। लेट्स किसी को कुछ कहना है तो अभी कह सकते हैं। विभा जी, सुषमा जी, हेलो शीतल सर, जी। नमस्ते सर। हेलो। ये ब्रिटिश इसमें आया है कि हियर KH tells us she is a fifth rounder but not exempt from quite a
considerable dose of vanity. ये किसके लिए बोला सर? फिफ्थ राउंडर? I could not hear the question. The question was ये फिफ्थ राउंडर किसके लिए बोला है? ये एना किंग्सफोर्ड के लिए बोला है. Actually होता ये है कि even though whole population of the earth is likely to be complete in its perfection at the seventh round, but there are some people whose speed is a little fast, and accordingly they will even earlier become reach the point of what you call bodhi or whatever it is, the completion of the perfection. So those who perfect themselves in the fourth round, which is going on at present, जैसा भगवान बुद्ध ने किया है, then he is called fourth rounder, and those who will be perfecting themselves in the fifth round will be called fifth rounders. And this is what is meant by fifth rounder, that इस round में अभी उनका perfection नहीं होगा, but in the next round it is possible. That's why he is telling that he may do some certain mistakes at present. See, he is telling about the fifth rounder, about the Madam K, Madam Kingsford. Hello, can I come in? Yes, sir. Please. Yeah. Very good talk. Though I'm not very fluent in Hindi, but I understand a little bit of Hindi, and okay, I've collected some English words as well. Shyam, well done. You had mentioned that the humanity is not ready yet. That you know, the in 1100 something to 11900 or something like that, they did bring Theosophical Society at that time, and the humanity was not ready at that time. But now they say that humanity is ready, and you said only few of them. No, it is not all few of them. It's all of them are ready. But how we approach them and how we explain to them, that will make a difference to every person. If you can make him understand, listen to you, and say this is it. Do you think that the prayers are working? Going to mandir, going to temple, going to mosque, all things are working. They'll be helpful to you. It's a time now we have to tell them none of these things work. And even the Theosophical members, I don't know how many members are in India and how many ES members are there, but they should become like Buddha and myself, who does not have go to any temple or a mosque or a church. I no need to go. When my body is a temple, the church and the mosque itself, why should I go? Why should the church go to church? Mosque go to mosque, like that. So if that understanding is there, that we don't require rituals. In the letter number I have a letter here, letter number 30, and master's letters, they are old one, the original one is letter number 134. I would like everybody to read letter number 30. The old copies are master's letters number 134. And in that one is very clearly that Sinnett and Hume, they had no belief. And this is why they could get in touch with them. Those going to be the believers, they don't get in touch with them. Now, how do they expect you to say you ask for prayer, masters now to call talking to me, not writing letters to me? They would write letters to everybody who do not have any belief. Nice, sir. Very nice input. Thank you. Yes, If you Vedha. want me to respond on this, actually, Master KH, in his one birth, he was Pythagoras. And even at the stage of Pythagoras, we know that his institute was burnt whole. You know, fire was put on it and the people have burnt it.
even though he was teaching everything good only. But there are certain people who had refused the admission into the school, so they had retorted and they have burnt the school. So, and because the Master KH was appointed as the world teacher for the next race, he was in hurry to start his work for the race. And so he always requested the chiefs to permit him to form an organization through which he can develop his future population. So, for that particular beginning of the races. So, always looking at the word, the reply was the word is not yet ready to start such an organization. But then, when he insisted too much, he was given the permission. This I have read somewhere, I don't remember where it is, but this is in the theosophical literature. No, So- I know about it. I know about it. It's in the one of the, not the master's letters of Epicene, but in other books. I think in the Divine Plan, I think they had to ask Master Serapis, Master Hilarion, Master the Venetian, Master Jesus, Master Saint Germain. 5 of them, and these 2, KH and MMM, they had a meeting and they discussed, look, we 2 of us, we like to do this. And they got a permission to say, yes, go ahead. Ultimately, they got the permission, right? So that means that there is no warm welcome by the public, but he has to develop the welcomeness. And perhaps if he starts, slowly it will grow and grow. And let us hope it is going to grow. And the response of the public as a whole, how it is at present, that we can always see that how scarce is the theosophical population. In the whole community, we are trying to find out a single person who can listen to what you say. There are no people. In the family also, we don't find people who can listen to you even. Forget about accepting to what you are telling. So that is the situation. That's why I beg to pardon that one. I'm from Zambia, Africa, Kitwe, Zambia. From Africa. I'm not from India. So I've been in the Kitwe Lodge for last 44 years. And I've made 20 of them, about 21 of them. Some of them have become vegetarian, and some of them have stopped going to the church. This Zambia is a Catholic, is a Christian nation as such. Can you believe it? I converted those all 20 to say, don't be of any religion. You don't need a religion. It was required in the Persian age. Now this is the Aquarian age. So Aquarian age does not need any prayers or any rituals, any ceremonies. And even Master Kutumi says, even the Buddhists, without the rituals and ceremonies, they are theosophists. So he says only esoteric Buddhism are the real people. So they in Buddhism also, if they are going to go ahead and say, roll the bells in their monastery or something like that, it's not going to help that ritual. Get the right understanding. Right understanding. Jitendra ji, we have to close, but we'll have to give Vibha ji a chance to speak, please. Okay. So could you end what you're saying quickly? Yes, I would quickly like to add one thing here, which has been categorically stated in the theosophical literature, that theosophy does not require one to leave their religion. Rather, it urges you to understand the foundational truths of every religion, which are the same, and they are given in theosophy. So, well, it is good that, yes, at a very high level of evolution, we can dispense with all the rituals and ceremonies. They are not needed. But while the person is yet evolving and he finds meaning in these ceremonies, it's okay. We do not condemn him. That is one point. The other point which I wanted to clarify was Brother Sharma ji's question about
the fifth rounder. That has been referred by the fifth rounder has been referred to, who is the author of the book The Perfect Way, and she is Anna Kingsford. So she had authored this book in which she interpreted the Christian teachings. She gave an esoteric interpretation of the Christian teachings, and in that sense, her understanding of esotericism was very high, and she is referred to as a fifth rounder. But in spite of that, she has these shortcomings which the master has referred, the the bigotry and the dual nature which she had. So these things go hand in hand in the evolution of man. And I would like to thank Gautamji for his explanation of this letter, in which is about 4 people who were put on probation from the British Lodge. And these 4 people were C.C. Massey, Hume, Sinnett, and Fern. And all of them they failed, they were not considered worthy except Sinnett. So thank you very much, Gautamji, and we will continue the remaining part in the next session, I hope. Yes. Thank you, So- madam, for your explanation. Thank you, Jitendra ji. I think anyway, you have inspired 20 people to be in theosophy is itself a great achievement, according Yes. to me. Yeah, I just wanted to say about Vibha said about in the Theosophical magazine, the Theosophist, that you may join the society without anybody living their religion, their rituals or their belief system. But it is written by Annie Besant, not by masters. And I think this is one has to be that paragraph has to be corrected by somebody to say no and put down correctly. There's nothing wrong to tell the truth. A spade is spade, and we should change that paragraph. What Annie Besant has said. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Shyam Gautamji. I think it was very inspiring. So we will continue, I think, next Friday, sir. So we'll finish this next Friday, this letter. Kindly everybody join in the. Madam, I would like to convey one thing, or Yes. I will tell it directly to Mr. Mahapatra ji, that perhaps this whole letter will be over by the next session, because I had total 46 slides, and I think about 25 or so I have already explained. So it won't take much time. Only in the one session it will be complete. So Yes, sir. Yes, sir. And we can continue discussion. If we have time, we'll continue discussing these very nice things. So thank you, everybody. And we can just join me in the closing prayer. Asatoma Satgame, Tamasoma Jyotirgame, Mrityorma Amritam Game. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you all, brothers and sisters, for joining today. Thank you.